Yes. So last day I have explained the concept of solvation and solvolysis. Okay, and have related it with the solvation energy, which is lattice energy. If lattice energy is greater than solvation energy, no dissolution will take place. If solvation energy is equal to or greater than, equal to, if solvation energy is equal to or greater than lattice energy, then solvation will take place. If solvation energy is very high compared to the lattice energy, then the breaking down of this solvent molecules under the influence of or under this high energy or this high extra energy available uh, is known as solvolysis. ठीक है. Lattice energy is क्या.
have used this word, no spontaneous dissolution. Spontaneous is important. खुद से dissolve नहीं होता है, that is a spontaneous dissolution नहीं होता है. और इस तरफ whatever we are talking about is the condition for spontaneous dissolution. If lattice energy is less than solvation energy, that is solvation energy is greater than or equal to lattice energy. In those cases, the solvation will take place. ठीक है, and the solvation means the spontaneous solvation. We don't have to assist it, or we don't have to provide anything from outside in order to in order to it to take place. ठीक है, solvolysis if lattice energy is very high, is very high. Sorry, very small compared to solvation energy, then after after overcoming the lattice breaking, or overcoming or compensating is a better word. Compensating lattice breaking energy still have, or the system still have, the system still have enough energy which which results into breaking down the polar solvent molecules in cells. This breaking down of polar solvent
Breaking down of polar solvent molecule under high excess of solvation energy is known as solvolysis. Clear? Any doubt? ठीक है? Yes, sir. Solvolysis is basically breaking down of, इसका सॉल्वो का मतलब सॉल्वेंट, लाइसिस मतलब ब्रेकिंग डाउन. ब्रेकिंग डाउन ऑफ सॉल्वेंट इज सॉल्वोलाइसिस. ठीक है? सॉल्वोलाइसिस का लिटरल मीनिंग है सॉल्वो एंड लाइसिस. लाइसिस इज ब्रेकिंग डाउन, breaking down. Solvo means solvent. Solvent का breaking down is solvolysis. We are going to see, मतलब not right now, but after maybe, I mean, इस week के बाद, next week में, और इस week में तो कोवैलेंट बॉन्ड्स के बारे में इस लेक्चर के बाद डिस्कशन करूंगा. तो कोवैलेंट बॉन्ड्स खत्म होंगे, मेटालिक खत्म होएगा. सेकेंडरी बॉन्डिंग के टाइम पे I'll be discussing different types of secondary bonding present, और उसमें एक टाइप का बॉन्ड आएगा that is called this हाइड्रोजन बॉन्ड्स. पोलर बॉन्ड्स में हाइड्रोजन बॉन्ड करके एक स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है. ठीक है? तो जो भी मॉलिक्यूल मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड जिनके अंदर में होता है, those type of molecules are primarily known as polar protic solvents. ठीक है? Polar protic solvents. And it has been observed that most of the polar protic solvents undergo solvolysis. ठीक है? Most of the polar protic solvents. एक बार रिपीट कीजिए ना. नहीं, ये रिपीट नहीं करना है, मत समझ में आया, कोई बात नहीं. अभी आगे इसको देखना है आपको. मैं ये बोल रहा हूँ सिर्फ कि सेकेंडरी बॉन्डिंग जब हम पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल इंटरेक्शन, तो सेकेंडरी बॉन्डिंग में एक स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड आएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स. ठीक है? ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन या पोलर पोलर इंटरेक्शन का पार्ट होता है. ठीक है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग वैसे मॉलिक्यूल्स में होता है या वैसे मॉलिक्यूल्स में ही हो सकता है जिनके पास H+ डोनेट करने की एबिलिटी होती है. ठीक है? यानी H+ को हम लोग प्रोटिक भी बोलते हैं, प्रोटॉन. H+ प्रोटॉन रहेगा ना, इलेक्ट्रॉन निकाल लिया H से तो बचेगा Yes, क्या? sir. प्रोटॉन बचेगा. तो इसलिए इसको प्रोटिक, जो भी इसको H+ डोनेट करने की एबिलिटी रखता है उसको प्रोटिक बोलते हैं. और सॉल्वेंट पोलर होगा तभी वो प्रोटिक हो सकता है. तो जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टैब्लिश करते हैं, और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेकेंडरी बॉन्डिंग होता है. ठीक है? सेकेंडरी बॉन्डिंग टाइप में ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है.
सो बेसिकली जब ये फॉर्म करता है मॉलिक्यूल के बीच में या मॉलिक्यूल आयन के बीच में, तभी हमारा जनरली सॉल्वोलाइसिस होता है। बाकी सारे सेकेंडरी बॉन्डिंग्स के केस में क्या होता है, द एनर्जी लिबरेटेड विल बी वेरी लेस। अच्छा, यहाँ पे सेकेंडरी बॉन्डिंग जो बोल रहा हूँ ना, ये जो प्रोसेस एक्सप्लेन किया है ना लास्ट टू लास्ट पेज पे, ये दिस इज एक्चुअली सेकेंडरी बॉन्डिंग। सेकेंडरी बॉन्डिंग, प्राइमरी बॉन्डिंग क्या है? प्राइमरी बॉन्डिंग एटम एटम, आयन आयन या आयन एटम के बीच में होता है, डायरेक्ट इंटरेक्शन, राइट। ऑन कॉन्ट्रेरी सेकेंडरी बॉन्डिंग इज मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूल्स के साथ या मॉलिक्यूल्स का आयंस के साथ जो इंटरेक्शन होता है ना, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी बॉन्डिंग, एंड दैट कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। मेकिंग सेंस? अभी हम लोग प्राइमरी बॉन्डिंग के बारे में पढ़ रहे हैं और उसके डिटेल्स को गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं। मेकिंग सेंस? आई होप इट इज क्लियर। Yes. बॉन्डिंग इसको नहीं बोल सकते, these are interactions between molecules, okay, or maybe molecules and ions also, generally molecule involved रहेगा। ठीक है। Now we need to understand few things. What are the factors which affect hydration energy और सॉल्वेशन एनर्जी? ठीक है, सॉल्वेशन एनर्जी में, अच्छा ये भी लिख दो, सॉल्वेशन एनर्जी अगर वाटर के थ्रू हो रहा है तो दैट इज हाइड्रेशन एनर्जी, राइट। बताया है पहले मैंने, ठीक है। और ये जो सॉल्वोलाइसिस डिस्कस किया, इसमें अगर हाइड्रो सॉरी वाटर की वजह से होगा तो इट इज नोन एज सॉल्वोलाइसिस ड्यू टू वाटर इज हाइड्रोलिसिस, सॉल्वेंट सॉल्वोलिसिस प्रोसेस, सॉल्वोलिसिस प्रोसेस, ठीक है। वाटर अगर रहता है तो वी कॉल इट हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस, ठीक है। वाटर के बाद अल्कोहल रहता है, ये भी पोलर प्रोटिक है, अल्कोहल, अल्कोहल, तो इट इज कॉल्ड अल्कोहल, alcoholysis, further alcoholysis and ammonia रहा ammonia, it is known as ammonolysis, ठीक है।
सो दीज आर 2-3 कॉमन सॉल्वेंट्स। इसके अलावा और भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स हैं, बट ये जनरली 3 प्रेवलेंट है। अब इनका जो है उनके हिसाब से बाकियों का नाम भी आपको ध्यान रह सकता है, या कुछ आया तो आप हैंडल कर सकते हो, ठीक है। Okay. Next thing is factors affecting affecting सॉल्वेशन एनर्जी, ठीक है। सबसे पहला फैक्टर जो होता है वो होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट सॉल्वेंट, ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? तो हाँ, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैंने बताया था कि क्या होता है, इसका इफेक्ट क्या होता है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स को क्या करता है, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा हुआ तो फोर्सेस को डिमिनिश करता है, राइट, बताया था ना। रिमेम्बर? हेलो? एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अरे ये ER था ना, F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू ER Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ठीक है। ये ER ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था ना, इसको Yes, डाइलेक्ट्रिक sir. कांस्टेंट भी बोलते हैं या फिर रिलेटिव परमिटिविटी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, सॉरी, ऑफ मटेरियल भी बोलते हैं, ठीक है। सो वी आर मोर कंसर्न्ड अबाउट द फर्स्ट नेम देन द सेकेंड नेम। Constant of solvent as dielectric constant, that is ER increases implies force of attraction decreases, ठीक है। अच्छा, ये रिलेशनशिप एग्जैक्टली ऐसा ही नहीं होता है, यहाँ पर टर्म्स थोड़े से मॉडिफाई होते हैं, ठीक है। मतलब ये इस तरह का ना रह के द नेट फोर्स जो होगा वो कुछ इस तरह का हो जाता है। इस टाइप के सॉल्वेंट्स वगैरह में इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस, 1/4πε0
everything multiplied by 1 minus 1 by ER into Q1 Q2 by 4 R square. ठीक है, so F will become proportional to 1 minus 1 by ER. ER इंक्रीज किया, ये नंबर डिक्रीज करेगा, डिफरेंस इंक्रीज करेगा, राइट. ER इंक्रीज किया, 1 बाई ER डिक्रीज करेगा और ये डिफरेंस इंक्रीज करेगा, बड़ा हो जाएगा नंबर, फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, यस राइट. सर. ठीक है, सो डिपेंडेंसी इस टाइप की रहती है. और ब्रॉडली हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है. ये मॉडिफिकेशन क्यों होता है, दैट यू विल स्टडी इन डिटेल व्हेन यू विल बी डूइंग दिस थिंग. क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जैसी एक चीज होएगी, वो करोगे तब इसका आइडिया लग जाएगा आपको. और इसके बदले मतलब ये चीज, और दूसरा कैपेसिटेंस वाला जो है पोर्शन ना, कैपेसिटेंस फिजिक्स में, उसमें भी इसका डिटेल्स आपको मिलेगा. यहाँ पर मैं डिटेल नहीं दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, जस्ट आइडिया दे रहा हूँ कि ऐसा रिलेशनशिप होता है. अब ये रिलेशनशिप क्यों आया, दैट इज नॉट द स्कोप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग एज ऑफ नाउ. ठीक है, so as dielectric constant increases, force of attraction decreases. That implies hydration energy, sorry, solvation energy decreases. Solvation energy is directly proportional to 1 minus 1 by ER. ठीक है, or we can say directly proportional to ER. 1 minus 1 by ER जो है वो ER से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ER बढ़ेगा तो 1 minus 1 by ER भी बढ़ेगा, राइट. Am I making sense? Yes, Yes, sir. sir. Okay. So let us consider two salts. ठीक है, दो सॉल्ट्स लेते हैं, कोई भी अपने मन से दो सॉल्ट ले लो एंड टेल मी द नेम. हेलो, मैंने बोला अपने मन से कोई भी दो सॉल्ट लो. Na2CO3. क्या क्या, Na 2CO3. ठीक है, और EaCl2. ठीक है. देखो, ये वाले का रिजोल्यूशन जो होगा वो थोड़ा डिफरेंट होता है, बट इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. दिस इज आयनिक ओनली. ठीक है, ये लगभग आयनिक ही है और ये भी आयनिक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. और द पॉइंट इज, ये ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी जो हम डिस्कस कर रहे हैं या ये सॉल्वेशन, दीज थिंग्स वी आर डिस्कसिंग फॉर प्योर आयनिक और
आयनिक डोमिनेंट स्पीसीज, आयनिक बॉन्ड डोमिनेंट स्पीसीज जिनके अंदर 70% प्लस आयनिक कैरेक्टर रहेगा, उनके लिए या 60% प्लस पे भी हम डोमिनेंट बोल सकते हैं। 60% प्लस अगर ये है कैरेक्टर, तो फिर उनके लिए ये चीजें ट्रू होंगी। लेकिन अगर परसेंटेज और डिप डाउन किया तो फिर these things may not be valid right now. In following solvents having different dielectric constant, क्या अभी सॉल्वेंट का नेम, नेम नहीं मतलब नोटेशन दिया हुआ है, solvent and ER value. Solvent A with ER 80, solvent B with ER 35, solvent C with ER 46, solvent D with ER 65. ठीक है. So what will be the order of solubility of these two in these solvents? ये सॉलिड्स सबसे ज्यादा किसमें डिसॉल्व होंगे? या ऐसे बोले सबसे ज्यादा सॉल्वेशन एनर्जी इनका किसमें होएगा? बी। बी में. क्यों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? सॉल्वेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईआर ना. Force of attraction is inversely proportional. ओके सर। अरे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस, सॉल्वेशन एनर्जी इंक्रीजेस. यार ये गलत कर दिया है यहाँ. सॉरी, सॉल्वेशन एनर्जी इंक्रीजेस, माय मिस्टेक. The force of attraction decreases, but solvation energy increases. यहाँ पे लिखा भी है it's directly proportional to ER. ठीक है, वर्ड्स में लिखते टाइम I had made the mistake. So it will be highest for A. Solvation energy order will be what? Order A will be maximum, followed by D, followed by C, followed by B. Is it okay? यस सर। The second factor is, अच्छा ये A जो है this is water, और बाकियों का भी कुछ ना कुछ नाम ही है. और ये ER की वैल्यू जो है वो किस चीज पर डिपेंड करती है? सॉल्वेंट की. ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे. बेसिकली पोलैरिटी जो थी डायपोल मोमेंट ना, वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन करता है, या उसी पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिपेंड करता है ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है,
polarity of solvent molecules, and we know what polarity is. Molecules is key reason behind their polarity of solvent molecules is key reason behind their dielectric constant. ठीक है. So, and it has been observed that like higher polarity implies greater dielectric constant in general. ठीक है. So अगर आपको कुछ भी प्रिडिक्ट करने के लिए आ रहा है, सो बेसिकली दे आर आस्किंग फॉर, मतलब कहीं पर भी कंपैरिजन वगैरह आएगा तो अब आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू याद नहीं रखनी है. अगर सॉल्वेंट के नाम दिए हुए हैं तो उसके बेसिस पर आप जज क्या करेंगे, पोलैरिटी कितनी है. ठीक है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितनी है, उससे पोलैरिटी का डिफरेंस आपको पता चलेगा, और पोलैरिटी के डिफरेंस से आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को के ऑर्डर को प्रेडिक्ट करेंगे और उसके बेसिस पर फिर सॉल्वेशन एनर्जी को निकाल लेंगे या उसके ऑर्डर को प्रेडिक्ट कर लेंगे. बात समझ में आ रही है? सेकेंड वन, चार्ज ऑन आयंस. ठीक है. greater the charge of ions, greater will be hydration or solvation energy. ठीक है. Greater the charge, greater will be solvation energy, because there will be, greater the charge, greater will be interaction between ion and dipole, right? पोलर मॉलिक्यूल का जितना चार्ज इस पे ज्यादा रहेगा, यस सर. पॉजिटिव जितना ज्यादा स्ट्रांग होएगा या नेगेटिव जितना ज्यादा स्ट्रांग होएगा, जितने ज्यादा होंगे उतना ही ये मॉलिक्यूल जो था उसका पॉजिटिव नेगेटिव एंड का इस पॉजिटिव के साथ या पॉजिटिव एंड का नेगेटिव एंड के साथ इंटरेक्शन स्ट्रांग होगा. राइट ना? मेकिंग सेंस? यस सर. दैट implies solvation energy SE will be directly proportional to Z plus or Z minus, right? कैटायनिक चार्ज और अनायनिक चार्ज प्लस नीचे रख लो, ऊपर रख लो, कहीं भी रख सकते हो, नीचे रखो बेटर है. So solvation energy is going to be directly proportional to Z plus or Z minus. That means solvation energy of F minus will be less than O2 minus
which will be less than N3 minus. Similarly, Li plus ion will get more solvated. Sorry, Li plus ion will get less solvated than Be2 plus ion, and this will get less solvated than B3 plus ion. B3 plus, right? Charges are increasing. If charges are increasing, the solvation will be greater. ठीक है? The third example could be Cl minus will have lesser than H2 minus, which will have lesser than P3 minus. Fourth example, sodium will be less than magnesium, which will be less than aluminium. ठीक है? Is it okay? Yes, sir. The third factor in this is ठीक है? Page number 4 will be moving into page number 20. The third factor which affects solvation energy is obviously the size of ions. ठीक है? और साइज ऑफ आयन पे कैसे डिपेंड करेगा? अगर ये आयन बड़ा है, ठीक है, और ये आयन छोटा है, इस पर भी एक चार्ज है और इस पर भी एक चार्ज है, ठीक है, व्हाट डू यू थिंक? इस डाइपोल के साथ और सेम डाइपोल के साथ, ये तो एक्चुअली डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव रहता है, तो किस वाले केस में अगर ये डाइपोल एग्जैक्टली सेम है, किस वाले केस में आपका इंटरेक्शन जो होगा दैट विल बी वीकर और स्ट्रॉन्गर? व्हाट डू यू थिंक? 1 and 2. Single charge over large area and single charge over small area, and they are interacting with dipoles, same dipole. ठीक है?
Hello. Any guesses and the reason behind your guess? ये इंटरेक्शन जो है स्ट्रांग होना या वीक होना एक्चुअली किस बात पे डिपेंड कर रहा है? Q1 Q2 की वजह से अमाउंट ऑफ चार्ज पे, ठीक है, बट अमाउंट ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस है, एम आई राइट? अमाउंट ऑफ चार्ज अगर जैसे ये बड़ा हुआ और ये छोटा हुआ, ठीक है, अमाउंट ऑफ चार्ज तो सेम रहा, इन दोनों में दिख रहा है एक ही यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, बट डिस्टेंस जो है एक्चुअली इसके न्यूक्लियस और इसके बीच में इंक्रीज कर जाएगा ना, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है बड़े वाले के लिए इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो साइज ऑफ आयन अगर बढ़ जाता है तो द सेपरेशन विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज, am I making sense? And if separation is going to increase, the solvation energy will get adversely affected. Am I making sense? So solvation energy or hydration energy, solvation energy is directly proportional to R of Z plus or Z minus, ठीक है। Greater the radius, greater will be solvation energy. Making sense? We can take some examples. Lithium plus कैसा होगा साइज इसका? Is it going to be small or large? small. अरे यार एक सेकंड रुक जाओ, मैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोला था ना सॉल्वेशन एनर्जी, डिस्टेंस बढ़ेगा तो सॉल्वेशन एनर्जी कम होगा ऐसा बोला ना, लिख उल्टा दिया मैंने, आई एम सॉरी। द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस, बेसिकली रेडियस इंक्रीज करने से इन दोनों का सेपरेशन इंक्रीज कर रहा है, और सेपरेशन इंक्रीज करेगा तो सॉल्वेशन एनर्जी डिक्रीज करता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होएगा तो जो एनर्जी रिलीज होती है इस इंट्रैक्शन में वो कम होती है, ठीक है। इट इज एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस, और 1/r z प्लस और z माइनस। ये बोलते टाइम से ही बोला, ये लिखते टाइम मैंने गड़बड़ कर दी। Some the examples are Li plus having smaller size compared to maybe sodium plus or potassium plus. The solvation energy of Li plus is going to be greater than sodium plus, which is going to be greater than potassium plus, which is going to be greater than rubidium plus, and in turn cesium plus, ठीक है, making sense? Similarly beryllium 2 Yes, plus sir.
will be greater than Mg2 plus, will be greater than calcium 2 plus, and will be greater than strontium 2 plus, will be greater than barium 2 plus. ठीक है. Or we can have oxygen 2 minus is going to have greater solvation energy than sulfur 2 minus owing to the size. F minus will have greater than Cl minus, which will have greater than Br minus, which will have greater than I minus. एंड ये सॉल्वेशन में ऐसा होता है, वी कैन हैव आइदर यूनिलेयर और मल्टीलेयर. ठीक है. इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट smaller ions smaller ions ions forms ions form or have multi-layer सॉल्वेशन. मल्टीलेयर सॉल्वेशन का मतलब क्या हुआ? मल्टीलेयर सॉल्वेशन का मतलब एक राउंड ये इस तरह से सज गया, फिर इसके ऊपर भी एक दूसरा राउंड. ये क्यों होता है? इस पॉजिटिव चार्ज के इफेक्ट के जैसे ये जब बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया, ये जितना छोटा होगा उतना स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होगा इसका. ठीक है. इसके स्ट्रेंथ के इन्फ्लुएंस में दिस पोलैरिटी गेट्स मैग्नीफाइड. नॉर्मली जितना रहता है उससे ज्यादा हो जाता है पोलैरिटी इसकी. ठीक है. चार्जेस का डील मतलब वी कॉल इट लोकलाइजेशन. ठीक है. एक तरफ निगेटिव चार्ज आ गया, एक तरफ पॉजिटिव, या सेग्रीगेशन ऑफ चार्जेस increases under influence of this charge density, and once this happens the polarity increases. पोलैरिटी इंक्रीज करने की वजह से, ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से एक नया लेयर ऑफ इस तरह का जो मॉलिक्यूल होगा उसके साथ ये इंटरेक्ट करना चालू करेगा. ठीक है. तो यहाँ पर पोलैरिटी इसके इन्फ्लुएंस में यहाँ पे भी पोलैरिटी थोड़ी इंप्रूव करेगी. थोड़ी इंप्रूव करने से ये नॉर्मल पॉजिटिव के बदले थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव, और एक और राउंड. सो 2 3 4 राउंड तक ऐसा सॉल्वेशन होते रहता है. दैट वाज अ प्राइमरी रीजन व्हाई लिथियम प्लस आयन अपॉन हाइड्रेशन, ऐसा डिस्कस किया था क्या मैंने? लिथियम प्लस आयन ऑन हाइड्रेशन वाज बिकमिंग मच लार्जर इन साइज. हाइड्रेटेड आयन का डिस्कस किया था हम लोगों ने ना, साइज. याद है? ये एग्जैक्टली इसी ऑर्डर में था हाइड्रेटेड आयन का. Yes, sir. आयंस का साइज क्या होता है? उल्टा ऑर्डर होता है. सीजियम प्लस विल बी लार्जर देन रुबीडियम प्लस, बट हाइड्रेटेड आयन का साइज जो है वो एग्जैक्टली इसी ऑर्डर में होता है. सॉल्वेशन एनर्जी ज्यादा होती है इसकी, इससे इसकी, इससे इसकी, इसके इससे इसकी वजह से देयर इज मल्टी लेयर फॉर्मेशन, और मल्टी लेयर फॉर्मेशन होने की वजह से इसका साइज बड़ा हो जाता है. लिथियम प्लस का साइज सबसे बड़ा हो जाता है. उसके बाद सोडियम, पोटेशियम एंड सो ऑन सो फोर्थ. सबसे छोटा सीजियम प्लस रह जाता है. मल्टीलेयर सॉल्वेशन, this increases the size of solvated
ions compared to original ions. ठीक है. Am I making sense? Yes, sir. Now, based on this, these are the factors which are going to affect. We have uh, trend of solvation energy, trend or application of solvation energy. The first one यही है, size of predicting size of uh, solvated ions. First application is helps in predicting size of solvated ions. ठीक है. And we can say that larger the solvation energy, larger will be the size of solvated ion. ठीक है. So solvation energy is directly proportional to, या फिर size of solvated ion is directly proportional to solvation energy. Size of solvated ions is directly proportional to solvation energy, right? Increase in size implies increase of solvation. Actually, it's other way around. Increase in solvation energy implies increase in size of solvated ion. ये जितना ज्यादा सॉल्वेशन एनर्जी होगा उतना ज्यादा मल्टी लेयर फॉर्मेशन होगा, राइट? और जितना ज्यादा मल्टी लेयर फॉर्मेशन होगा उतना बड़ा साइज हो जाएगा इन जनरल, विदाउट एनी एक्सेप्शन. ठीक है. सो द बेस्ट एग्जांपल इज Li plus ion in gaseous state is quite smaller than sodium plus ion in gaseous state. ठीक है. But Li plus in aqueous becomes much greater than Na plus in aqueous. ठीक है. तो ऊपर में ये गैस रहेगा. Is it okay? बेसिकली ये जितना स्मॉल रहेगा उतना ज्यादा हमारा सॉल्वेशन एनर्जी होगा. गैसियस फेज में साइज जितना छोटा उतना ज्यादा सॉल्वेशन एनर्जी, और वो जितना ज्यादा होगा सॉल्वेशन एनर्जी जितना ज्यादा होगा सॉल्वेटेड आयंस का साइज उतना बड़ा हो जाएगा. गुड, राइट? बात Yes, समझ में sir. आ रही है हम लोगों को? Yes, sir. ओके. अनुश्रेष्ठ, आज तुम एकदम शांत बैठे हुए हो. हेलो अनुश्रेष्ठ है ही नहीं क्या?
है तो, सर है वो। है ना। अनुश्रेष्ठ, अनुश्रेष्ठ, सो गए हो क्या? अनुश्रेष्ठ, smaller the size of gaseous ion, gaseous ion implies larger solvation energy. This further implies larger the size of solvated ions. ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हो मल्टी लेयर सॉल्वेशन इज द रीजन। बेसिकली मुझे मैं अपने शॉर्ट नोट्स जब बनाता था तो कुछ इसी तरह से पॉइंट्स को मेंशन करता था, और आजू बाजू में इंस्टेड ऑफ राइटिंग एग्जाम्पल्स मैं एक्सेप्शंस लिखता था। अगर कुछ एक्सेप्शन है 2 4 5 तो उनको मैं यहाँ पर मेंटेन करके रख देता था। बाकी सारी चीजें तो इसी से प्रिडिक्ट होनी है, तो उनका एग्जाम्पल लिख के कुछ फायदा नहीं है। अगर कुछ एक्सेप्शन है तो फिर मैं लिख दिया करता था, और एक्सेप्शन एक साथ नहीं मिलते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन अलग अलग जगह से ढूंढ करके खुद से ला करके लिखना पड़ता है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम पर आपको कहीं पर रीजंस मिल जाएंगे, कुछ एक बता दिए जाते हैं, बट जनरली इस केस में नहीं है। आई एम जस्ट सेइंग कि इस तरह के बिहेवियर्स जहां पर भी आपको स्टडी करने हो, आपको भी शॉर्ट नोट्स अपने बनाने चाहिए। नोट्स तो ठीक है, बट अपने शॉर्ट नोट्स भी बनाने चाहिए आप लोगों को। दैट विल हेल्प इन एंड ऑफ द मतलब दैट विल हेल्प यू इन क्विक रिविजन्स लेटर ऑन, जब बहुत सारी चीजें पढ़ चुके होंगे हम लोग। केमिस्ट्री की ऐसी 6 से 7 कॉपीज हमारी भर चुकी होंगी, वो 2 कॉपीज कम से कम इनऑर्गेनिक में खत्म होता है, 2 से ढाई कॉपी मोटी वाली, अच्छी खासी मोटी वाली फिजिकल में खत्म होंगी, और उतनी ही लगभग ऑर्गेनिक में खत्म होती है। सो इट्स अराउंड 900 to 1000 पेजेस ऑफ राइटिंग्स आप करोगे केमिस्ट्री में। फिजिक्स मैथ्स में रिलेटिवली कम करनी होती है, मतलब स्टोर कम करना होता है, करना तो उसमें भी होता है, बट मोस्ट ऑफ द कैलकुलेशंस एंड ये जो करोगे उसके अंदर में दैट विल बी स्पिल्ड ऑफ। एग्जाम्पल्स या क्वेश्चन करोगे तो उनको स्टोर करके जनरली नहीं रखते हैं। ये थियरी होती है तो पूरा रखना पड़ता है। so the quantum is going to be quite large at end of the day, ठीक है। so be cautious, keep storing it judiciously, right? Okay, the second application of this is mobility of ions. mobility of ions का मतलब क्या हुआ? mobility of ions, मोबिलिटी ऑफ आयंस का मतलब सॉल्वेंट अगर पोलर है, सॉल्वेंट अगर पोलर है तो ये जो आयन प्लस या माइनस जो भी आयन रहेगा, चार्ज स्पीसीज है, ये भी चार्ज स्पीसीज है, ये इसके थ्रू मूव करता है। आयन जनरली मोबाइल होते हैं,
पोलर में होंगे तब भी, नॉन पोलर में होंगे तब भी, नॉन पोलर सॉल्वेंट में होंगे तब भी रैंडमली ये मूव करेंगे। नाउ द थिंग इज, अगर ये सॉल्वेटेड होता है, जितना ज्यादा सॉल्वेटेड होएगा उतना ज्यादा इसका साइज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ज्यादा सॉल्वेटेड मतलब ज्यादा बड़ा साइज, कम सॉल्वेटेड मतलब कम साइज। एम आई मेकिंग सेंस? अब इसका बल्क बढ़ गया है एंड ऐसा होता है कि लिक्विड वगैरह में, लिक्विड या किसी भी फ्लूइड में और रेसिस्टिव फोर्स जो होता है, रेसिस्टिव फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के। किसके? सरफेस एरिया के। एम आई मेकिंग सेंस? अगर सरफेस एरिया ज्यादा हुआ तो रेसिस्टिव फोर्स ज्यादा होगा, तो इसका मोशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा सरफेस एरिया के। रेसिस्टिव फोर्स अगर ज्यादा हो गया तो इसका मोशन क्या हो जाएगा? स्लोअर हो जाएगा, मोबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। एम आई मेकिंग सेंस टू ऑल ऑफ यू? हेलो, Yes, sir. बात समझ Yes, में sir. आ रही है क्या हम Yes, लोग? sir. वेरी गुड, बात समझ में आ रही है तो good. So let me write next thing. Mobility of ions. ये पॉइंट लिख लेना, फ्लूइड्स, लिक्विड्स और फ्लूइड्स में the resistive force is directly proportional to surface area. और इस साइड में लिख लेते हैं more solvated ions will have larger size, that implies lower mobility. Am I making sense? That implies mobility of solvated ions, solvated ions will be inversely proportional to size of solvated ions, right? The third key point or third important application is conductivity of solvated ions. Solvated ions. It has been found that this conductivity of solvated ions, basically solvated ion की conductivity
या किसी भी आयनिक सिस्टम की कंडक्टिविटी दो चीजों पर डिपेंड करती है। कंडक्टिविटी का मतलब क्या हुआ, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर इलेक्ट्रिक चार्ज, कंडक्टिविटी मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी का कैरी होना, राइट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कैरी होना, दैट इज कंडक्टिविटी। एम आई मेकिंग सेंस? अब अगर मोबिलिटी, हमारी मोबिलिटी ऑफ आयंस, अच्छा, कंडक्टिविटी दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक तो ये आयंस कितने ज्यादा मोबाइल हैं, या चार्जेस जो हैं, चार्ज कैरिंग एंटिटी जो भी है हमारा, वो कितना ज्यादा मोबाइल है। अगर इलेक्ट्रॉन खुद मूव कर रहे हैं तो वो कितना फास्ट मूव कर सकते हैं, या अगर उसको कैरी करने के लिए कोई मीडियम हम यूज कर रहे हैं जैसे गैसियस आयन या फिर सॉलिड आयंस, जो भी यूज कर रहे हैं या लिक्विड फेज में यूज कर रहे हैं, तो वो कितना फास्ट मूव कर सकता है। और दूसरी चीज होती है कि उसके खुद के ऊपर चार्ज कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। अगर ये ज्यादा चार्ज बियर कर सकता है, जैसे एल्यूमिनियम 3+ है, तो उसका मोबिलिटी थोड़ा कम भी रहेगा, बट वो बेरिलियम से ज्यादा फास्ट जा सकता है, ठीक है। तो कंडक्टिविटी विल बी लाइक, conductivity is something which is going to be dependent on first size of the ion and second their mobility, ठीक है। पहला size of the ion, sorry, amount of the charge on the ion and their mobility, ठीक है। अमाउंट ऑफ चार्ज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंडक्टिविटी, और साइज से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि साइज ऑफ आयन अगर बड़ा होगा या हाइड्रेटेड आयन सॉल्वेटेड आयन अगर बड़ा होगा तो उसकी मोबिलिटी कम होगी, और अगर मोबिलिटी कम हुई तो कंडक्टिविटी भी ऑब्वियसली हैम्पर होएगी, राइट। मोबाइल अगर ये कम रहेगा तो कंडक्ट भी ये कम करेगा, क्योंकि मूव ही स्लो कर रहा है। इज इट मेकिंग सेंस? So conductivity of solvated ion has been found to be inversely proportional to size of solvated ions, ठीक है। That implies larger the size of solvated ion, lesser will be its conductivity. Am I making sense? Larger the size of solvated ions implies smaller the conductivity, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर LiCl, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, इन सबको आप पानी में डालते हैं, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, विच ऑफ देम इज गोइंग टू बी मोर कंडक्टिव? कैसे सोचेंगे हम लोग, ठीक है। इन दोनों को पानी में डालेंगे, सॉल्वेट हो जाएंगे, सॉल्वेट होकर के Li+ एक्वस एंड Cl- एक्वस बनाएंगे। निगेटिव वाला अनायन जो है वो सेम है, तो सब में सेम मोबिलिटी रहेगी, यानी सेम कंडक्टिविटी रहेगी निगेटिव चार्ज की वजह से। पॉजिटिव वाले का साइज डिफरेंस है, सॉल्वेशन में डिफरेंस होएगा, और सॉल्वेटेड आयन के साइज में भी डिफरेंस होएगा, राइट। इसका सॉल्वेटेड आयन सबसे बड़ा, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका। और सॉल्वेटेड आयंस के साथ कंडक्टिविटी कैसे डिपेंड कर रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट मींस LiCl will become least conductive in solvent, solvated state compared to NaCl, which will be more compared to KCl, which will be more compared to
sorry, less compared to RbCl, which will be less compared to CSCl, right? LiCl will be least and CSCl will be most. Making sense? Right Yes, now, on सबसे आखिरी जो एप्लीकेशन है इसका वो है स्टेट ऑफ सॉलिबिलिटी. ठीक है. और to determine solubility of a solute or ionic solute of an ionic solute into polar solvent. Is it okay? जिसका सॉल्वेशन एनर्जी ज्यादा होगा, we can expect that is going to be obviously जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा soluble होगा, जिसका कम सॉल्वेशन एनर्जी होगा वो कम soluble होगा, right? So higher the solvation energy of a solute implies greater solubility. ठीक है. सर अभी का लेक्चर कब तक है? I'll end it in some time. 2-4 मिनट और. ठीक है. uh, यहाँ पर I will just like you guys to know this. Suppose हमारा कोई एक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड MX के फॉर्म में. X यहाँ पर हैलोजन नहीं है, it can be oxygen also. The formula could be M2O or anything like that. ठीक है. इसको अगर हमने डायरेक्टली वाटर में या सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया, ठीक है, सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया तो इट विल बिकम Mn+, ठीक है, एंड सॉल्वेटेड and this will become Xn- solvated, right? 1-1 लिया है. Ideally it should be taken like this, M and Xn, so that M and this should have been N. बात समझ में आ रही है? और ये उल्टा हो जाएगा थोड़ा सा, ये तो N+ रहेगा, ये M- हो जाएगा. ठीक है. सो ये सॉल्वेटेड, और इसमें जो एनर्जी हमको मिलेगी वो क्या मिलेगा? सॉल्वेशन एनर्जी. ठीक है. इस प्रोसेस में हमको क्या मिलेगा? सॉल्वेशन
energy, right? इसको अगर हम ब्रेक करते हैं, लैटिस एनर्जी प्रोवाइड करते हैं Li, ठीक है, तो क्या होगा? इट विल ब्रेक डाउन इनटू आयंस, M n plus gas plus n xm minus gas, ठीक है। और फिर इसको अगर हम लोग पानी में वापस से डालते हैं, पानी में वापस से डालते हैं, व्हाट विल बिकम, पानी अब मतलब जिस सॉल्वेंट में डालना है हमको उसको डाल देते हैं, तो गैसियस आयन का सॉल्वेशन एनर्जी निकल जाएगा, ठीक है। गैसियस आयन का सॉल्वेशन एनर्जी ऑफ गैसियस आयन सॉल्वेशन। सो बेसिकली ये सॉलिड का डायरेक्टली अगर हम कर रहे हैं या इस प्रोसेस से कर रहे हैं, ठीक है, the energy is going to be the energy of this system, whether we are going via this route or via this route, it should be same, and it is same indeed, ठीक है। so डायरेक्ट सॉल्वेशन या डायरेक्ट मिक्सिंग के अंदर में जो एनर्जी प्रोड्यूस या एब्जॉर्ब होगी, दैट विल बी सम टोटल ऑफ लैटिस एनर्जी ऑफ दिस सॉलिड प्लस सॉल्वेशन एनर्जी ऑफ गैसियस आयंस। मेकिंग सेंस? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ये Yes, रूल sir. होता है, इस पाथ से हम जाएंगे या इस पाथ से जाएंगे, इट इज गोइंग टू टेक सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। दिस रूल इज कॉल्ड, यू आर गोइंग टू स्टडी दिस इन thermodynamics. This rule is this rule of conservation of energy is called going to be known as Hess law, ठीक है। इस पाथ से हम जाएं, सेम प्रोसेस करें या मल्टी स्टेप बना करके किसी और तरीके से करें, द एनर्जी इन्वॉल्व विल बी एग्जैक्टली द सेम, ठीक है। इनफैक्ट इसी को यूज करके, इसको यूज करके मेनी टाइम्स हम लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। लैटिस एनर्जी मैंने पहले बताया था कि इसको करने का डायरेक्ट मेथड हमारे पास नहीं है, तो इनडायरेक्ट मेथड में एक्चुअली हम इस चीज को यूटिलाइज करते हैं, इसको सॉल्वेट कर लेते हैं, बाकी सारी चीजें उधर से जो कैलकुलेट करी है हमने, पहले किया था ना कंपाउंड फॉर्मेशन के टाइम पर, बॉर्न हेबर साइकिल, रिमेम्बर, वो सारी चीजें करते हैं और उसमें ये स्टेप को बाइफरकेट करके ये वाली वैल्यू हम निकाल लेते हैं और ये मिसिंग वैल्यू हमारा वो इक्वेशन देता है। कैसे देता है वो थर्मोडायनेमिक्स में फिर से क्वेश्चंस करेंगे उस पे, बस अभी के लिए मैंने ये बता दिया, दिस प्रोसेस एंड दिस प्रोसेस आर इक्विवेलेंट, ठीक है। ठीक है, आज के लिए हम लोग यहीं पर रुकते हैं। देर आर सर्टेन स्मॉल things which I'll be telling you in next lecture regarding this, and then we will be doing Fazan's rule and other things. इसके अंदर में एक फजान्स रूल और एक लेविस डॉट स्ट्रक्चर, दो चीजें बची हुई हैं, I'll do it, ठीक है। ओके बच्चा लोग, हैव अ नाइस डे, बाय फॉर नाउ। Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir.